اور اس سانحے میں جاں بحق ہونے والے کار ڈرائیور ذیشان کی والدہ نے واقعے کے ذمہ داروں سے سوال کر دیا۔ دکھیاری ماں کہتی ہے کہ ذیشان اگر دہشت گرد تھا تو زندہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ جہاں سے مرضی ریکارڈ چیک کرا لیں، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ذیشان شریف اور ایماندار تھا۔ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما اندلیب عباس انہیں اور ذیشان کو ذاتی طور پر جانتی ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیے۔ جو آپ کی وزیر ہے نا اندلیب عباس، وہ بھی مجھے جانتی ہیں۔ میں ابھی نہیں 2-4 دن کے پاس ان کے گھر جاؤں گی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بچہ کیسا تھا اور یہ عورت کیسی تھی۔ اندلیب عباس کی جو دھرانی ہے دیورانی ربینہ، اس نے مجھے اپنے گھر پہ رکھا اور میرے بیٹے کو اس نے پڑھایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، نیو اسکول ماڈل ٹاؤن میں۔ اچھا جی، ہاں جی، اور سکول میں بھی اس کا ریکارڈ پوچھ لیں، اور عابد مارکیٹ سے بھی پوچھ لیں، اور حفیظ سینٹر سے بھی پوچھ لیں، محلے سے بھی پوچھیں۔ انشاءاللہ پورا محلہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ بچہ بڑا شریف تھا، ایماندار تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس پہ کیا کیا الزام لگایا ہے۔ 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن پڑھتا تھا، بیٹی کو بھی اس نے قرآن پاک 3 دفعہ پڑھا چکا ہے اب تک۔ مقتول ذیشان کی والدہ نے واقعے کے ذمہ داروں سے سوال کیا ہے۔ دکھیاری ماں کا کہنا ہے کہ ذیشان اگر دہشت گرد تھا تو اسے زندہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کہتی ہیں کہ جہاں سے مرضی ریکارڈ چیک کرا لیں، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ذیشان شریف اور ایماندار تھا۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے رہنما اندلیب عباس انہیں اور ذیشان کو ذاتی طور پر جانتی ہیں۔ دکھیاری ماں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ذیشان کو اگر دہشت گرد کہا گیا تو اسے زندہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اسے گولیاں کیوں ماری گئیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور میں جہاں جہاں وہ رہے ہیں وہاں سے ریکارڈ چیک کرا لیں، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ذیشان شریف اور ایماندار تھا۔ یہ کہنا تھا اس دکھیاری ماں کا۔ سانحہ ساہیوال پر حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ نظر آنے لگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی ارکان سانحے پر بحث میں تکرار ہی کرتے رہے۔ حکومتی ارکان نے اپوزیشن کے سوالوں کا تانوں سے جواب دیا۔ جے آئی ٹی یہاں پہ فیشن بن گیا ہے جے آئی ٹی بنانا، اور جس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر ایکشن لینا ہو اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے، جس جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ ایکشن نہ لینا ہو وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سر دکھانے میں چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے بالکل کہا جے آئی ٹی جو ایکشن لینا ہوتا ہے جس جے آئی ٹی پہ لیتے ہیں، جس پہ نہیں لینا ہوتا نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی رپورٹ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ قانون یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے حرکت میں آ سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے جس کے ہاتھ جو ہے سینکڑوں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ آج بھی راؤ انوار دندناتا پھر رہا ہے۔ اگر یہ مثال جو ہے پہلے کہیں اس کو سیٹ کر دیا گیا ہوتا تو آج یہ ان لوگوں کو یہ جرأت نہ ہوتی۔ میرا سوال ان سے ہے، آپ کی حکومت تھی اس وقت، آپ ڈیفنس منسٹر تھے، کیوں نہیں آپ نے کچھ کیا تاکہ ایسے واقعات نہ ہو؟ کیوں آپ نے راؤ انوار کو کھلا چھوڑا؟ اور پھر کہا گیا کہ جی بچوں کو ہیومن شیلڈ بنایا گیا تھا۔ گھٹیا پن بھی بڑا چھوٹا لفظ ہے۔ دہشت گرد وہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں۔ دہشت گرد وہ تھے جنہوں نے فائرنگ کی۔ ساہیوال والوں کو کم سے کم 16 بندوں کو سی ٹی ڈی کا پکڑا اور درست پکڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنہوں نے دہشت گردی ختم کرنی ہے وہ دہشت گرد بن جائے، اسی واسطے وہ پکڑے گئے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ ایک ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا۔ ادھر یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، چلیں قطر چلے گئے ہیں۔ جو ٹویٹ بھی آئی، ایک طرف مذمت تھی کہ جی میں بڑا افسردہ ہوں، اور دوسری طرف جو ہے تعریف تھی کہ سی ٹی ڈی نے کمال کام۔ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر انگریزی میں پرائم منسٹر کی ٹویٹ نہیں سمجھ آئی تو اردو میں بھی اس کی آ جاتی ہے۔ سی ٹی ڈی کی تعریف نہیں کی تھی انہوں نے اس ایکشن پہ، انہوں نے کہا سی ٹی ڈی نے یہ جو کیا ہے اس پہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا۔ اسی قانون کے تحت ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات چلائے جائیں۔ ریکال کریں اپنی سپیچز، عمران خان صاحب بھی اور علی محمد صاحب بھی، جس انصاف کا یہ اس وقت دعویٰ کرتے تھے یا جس انصاف کو یہ آوازیں دیتے تھے، آج یہ موقع ہے کہ وہ انصاف کر کے دکھائیں۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہو کے بڑا کہ جی حکومت استعفیٰ دے دے، حکومت یہ کر دے؟
हम तो वही भुगत रहे हैं जो आपने तबाही मचाई है पंजाब पुलिस के साथ। सानेह साहिवाल ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं तो ज़ीशान को क्यों पकड़ा नहीं गया? क्या गोलियां बरसाना ही वाहिद ऑप्शन था? देखिए ये रिपोर्ट। दहशतगर्द कुलभूषण और एहसानुल्लाह एहसान जैसे बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं तो क्या 16 CTD एहलकार एक ज़ीशान को जिंदा नहीं पकड़ सकते थे? क्या गोलियां बरसाना ही वाहिद ऑप्शन था? मान लिया कि ज़ीशान दहशतगर्द था, क्या 48 घंटे बाद भी कोई असलहा, कोई बारूद बरामद हुआ या कोई खुदकुश जैकेट मिली? फिर क्यों उसे बेदर्दी से भून डाला गया? उसने तो अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खोली थी। हुकूमत ने GIT तो बना दी, लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या पुलिस वालों की इंक्वायरी भी पुलिस ऑफिसर ही करेंगे? क्या मदीना की रियासत में ऐसा ही होता था? CTD की बेहमाना कार्रवाई ने कई सवालात उठा दिए हैं। इन दुखों का मदावा शायद कभी नहीं हो सकेगा। सानेह साहिवाल में मारे जाने वाले खलील और ज़ीशान के घर मातम कदा हैं। खलील की बच्चियां पूछती हैं कि मामा कहाँ है, सवाल करती हैं कि पापा क्यों नहीं आए, और ज़ीशान की बेटी के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। मौत वो हकीकत है जिससे बचना मुमकिन नहीं, मगर जब ये नागहानी हो, मजलूमाना हो, तो लवाहिकीन को सब्र का दिलासा देना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ है खानीवाल के उन खानदानों के साथ जिनका घराना CTD के ऑपरेशन का निशाना बना। अभी तो 3 दिन हुए और दुख तमाम उम्र का है। आंसू खुश्क हो भी गए तो क्या, जाने वालों की कमी हर पल उनकी याद दिलाएगी। उन्होंने डकैती की है हमारी, वो दहशतगर्द थे, लूटने आए थे, लूट के चले गए, मार के चले गए। खलील के बच्चे घर पहुंच गए हैं। वो दिलासा देने वालों को खाली आंखों से देखते हैं। छोटी बच्चियां सिर्फ एक सवाल करती हैं, मामा कहाँ हैं, पापा क्यों नहीं आए? ये ज़ीशान की बेटी है जिसे CTD और वजीर कानून ने दहशतगर्द करार दिया, मगर ताहाल ज़ीशान के दहशतगर्द होने के सबूत पेश किए जाना बाकी हैं। खुदा करे मुतासिरा खानदानों के आंगन में जल्द फसले गुल उतरे, मगर लगता यही है कि बाहर आई भी तो खिज़ां के रंग जाते जाते ही जाएंगे। जहां वालिदैन और बहन की मैयतें पड़ी हो और बेटा जख्मों से चूर हो, वहां फूल देने का क्या मतलब है? गुलदस्ते के साथ तस्वीर बनाना कितना बड़ा कौमी फरीजा है? सोशल मीडिया पर सवालात उठ गए और हर दिल मजीद दुख में डूब गया। अरकान पार्लियामेंट भी उस्मान बुज़दार पर बरस पड़े। इनको ये नहीं कि फूल कब दिए जाते हैं। फूल उस वक्त दिए जाते हैं जब आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे लाल फूल तो खुशी का इजहार होता है ना। कभी किसी बीमार की इयादत करने जाए या किसी जख्मी की, तो फूल देना तो एक जेस्चर उस तरह से होता है। मैंने समझा कि उन्होंने उसी तरह से किया। मुझे नहीं पता कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है जी। फूल वो लेकर गए, बच्चे को दिया, और ज़ाहिर बात ये भी किसी ने उनके हाथ में थमाया होगा कि सर फूल भी साथ ले जाना चाहिए। ये एक जुज़वी बात है, एक गलती है, और माहौल या हालात के मुताबिक ये इवेंट नहीं होना चाहिए। ये बड़ी स्ट्रेंज सी क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं। बात है कि वज़ीर आला का उस टाइम पे फ़ौरन पहुंच जाना असल बात होती है। ये तो गैर मुनासिब है। वो बेचारा कुछ उसकी रवायत भी मालूम नहीं है रवायत भी मालूम नहीं। असल मसला है कि ना GIT बनना चाहिए, वो कातिल है, बस उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। फूल वाला मामला भी ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने उन बच्चों के साथ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ एक मजाक किया है। साहिवाल वाक़े में जिस गाड़ी पर CTD की तरफ से फायरिंग की गई थी, उस गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट गायब कर दी गई, जिससे अहम शवाहिद को मिटाने के खदशात भी पैदा हो गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। साहिवाल वाक़े की बाज़गश्त है कि ख़त्म होने में नहीं आ रही। हर रोज़ एक नया इंकशाफ, हर घड़ी एक नई खबर। पहले तो गाड़ी की दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल होने की बातें की गई, मगर साहिवाल टोल प्लाजा पर जिस गाड़ी की नंबर प्लेट मौजूद थी, वाक़े के बाद ना उसकी अगली नंबर प्लेट मौजूद रही, ना पीछे की।
सवाल ये है कि अगर ये गाड़ी पहले भी दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होती रही तो इसकी नंबर प्लेट गायब करके क्या मकसद हासिल किया जा रहा है। वाक़े के ताने बाने और तज़ादात मंजर आम पर आने के बाद यूं लगता है कि अब सबूत मिटाने की तैयारी है ताकि हक़ाइक़ को अबहाम की धूल में इस तरह छुपा दिया जाए कि असल वाक़े का सिरा किसी के हाथ ना आए। पंजाब की सियासत में नया भूचाल आने को है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। क्या पंजाब में गवर्नेंस का बुरा हाल उस्मान बुज़दार के गले पड़ने वाला है? क्या सानह साहिवाल इस ताबूत में आखिरी कील है? क्या इमरान खान अपने सियासी वसीम अकरम की वाइड्स और नो बॉल से तंग आ गए हैं? और क्या पंजाब में टीम का कप्तान बदलने वाला है? आम इंतखाबात से पहले शाह महमूद कुरैशी पंजाब की वजारत आला के लिए सबसे फेवरेट थे और अब वो एक बार फिर पंजाब की सियासत में अहम किरदार लेने के मिशन पर निकल पड़े हैं। ज़राए कहते हैं कि उन्होंने पंजाब असम्बली के नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए अपने वोटर्स और रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। शाह महमूद कुरैशी के जहांगीर तरीन से इख्तलाफात की खबरें भी मीडिया में गर्दिश करती रहती हैं, इसीलिए शाह महमूद ग्रुप के बाज MPAs अपनी नशिस्त वज़ीर ख़ारजा के लिए छोड़ने पर भी रजामंद हो गए हैं। दूसरी तरफ मजहर अब्बास रां की वफात से खाली होने वाली PP 218 की नशिस्त भी शाह महमूद के लिए एक ऑप्शन है। PTI के कप्तान इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के हक में फैसला दिया तो उस्मान बुज़दार को पैवेलियन लौटना पड़ेगा। PTI के इत्तेहादी एक एक करके नाराज होने लगे। BNP मेंगल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA के बाद मुस्लिम लीग काफ के भी तहफ्फुज़ात सामने आ गए। इत्तेहाद में रहने या ना रहने का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया गया। कामिल अली आगा कहते हैं कप्तान का यही रवैया रहा तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। इत्तेहाद के इत्तेहाद पर सवालिया निशान लग गया। बदलते मौसम के साथ ही तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के तेवर भी बदलने लगे। विफाक में अख्तर मेंगल इत्तेहाद से अलग हुए तो पंजाब में काफ लीग के वजीर अम्मार यासिर के इस्तीफे ने कई सवालात खड़े कर दिए। बदलते सियासी मंजरनामे पर मुशावरत के लिए इस्लामाबाद में चौधरी शुजात की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से फैसले का इख्तियार चौधरी शुजात को दे दिया गया। चौधरी बरादरान वजीर आजम की वतन वापसी पर उनसे मुलाकात करेंगे। इजलास के बाद चौधरी शुजात ने महंगाई को तनकीद का निशाना बनाते हुए गवर्नेंस पर तहफुजात का इजहार किया। आवाम का जो तकलीफ है और ख़ास तौर पर महंगाई के मतलब मैंने बार बार कहा है कि उसको किसी तरीके से रोकें। ये शायद हर चीज़ की तबाही का यही होगा, महंगाई जो बढ़ रही है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने लगी लिपटी रखे बगैर सब कह दिया और कहा कि उनकी जमात को इमरान खान से बड़ा शिकवा है। यही रवैया रहा तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। PTI के अंदर जो असल कमी है वो मुशावरत की कमी है, मशवरा नहीं करती और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर भी अपनी अलाइज के साथ जो है मशवरा न करना, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। PTI और GDA में वजारतों के मामले पर इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से कप्तान ने खानगढ़ का दौरा मनसूख किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MKM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कह चुके हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल मुतमईन नहीं। कप्तान को जान लेना चाहिए कि इत्तेहादी हुकूमत वन मैन शो नहीं होता। उन्होंने इख्तलाफात पर तवज्जो ना दी तो हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा।